So I was discussing about GDP and national income. Okay, so जो लोग मिस किया था पुराना क्लास वीडियो देख लियो तुम लोग? गुरप्रीत एंड थेया ना दादा। ओके, कोई बात नहीं। गुरप्रीत तुमने देखा? सर आधा देखा था। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली जो मैंने कहा कि the full form of GDP is gross domestic product. ओके, अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक साल में विद इन अ ईयर और विद इन अ टाइम पीरियड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ country. Okay, I repeat, within a given time period the total amount of goods and services produced within the domestic boundaries of a country is called the GDP of that country. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जो मतलब कि अपने बाउंड्री में रह के प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम लोग अपने जीडीपी में ऐड करेंगे. ओके, अब जीडीपी में ऐड करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करें. जैसे एवरी ईयर वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी आर प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स, वी आर प्रोड्यूसिंग लैपटॉप्स, वी आर प्रोड्यूसिंग फूड्स, वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट थिंग्स. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड दीस थिंग्स. ओके, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, राइट? नाउ हाउ विल यू ऐड मोबाइल फोन्स with fruits? Can you add mobile phones and fruits? You cannot. So what we have to add? We have to add the value of this product. Okay, so suppose if India is producing 10 lakh mobile phones every year, and each mobile phone costs suppose 1 rupees. So the total value of mobile phones which India is producing is worth 2 lakh rupees, right? And if each fruit costs suppose 1 rupees, and India is producing 10 lakh fruits, so India is producing 10 lakh rupees worth of fruits. So we can add this value of mobile and fruits, and we can say that the GDP of India is 20 lakh rupees. You understand this? So we have to add the value of the product, not the product, because we cannot add product. There are n number of products being produced in the economy, and we cannot add all those products. So basically we have to add the values of those products. Okay, so in this way we calculate the GDP of a nation. Okay, now I discussed about 3 ways to calculate GDP. The 3 ways are through income method, through expenditure method, and through value added method. So I will discuss the value added method today once again and try to follow this. तो जीडीपी मतलब मैंने ये भी बताया था, it's the final goods and services which are produced in the economy. We have to add the final goods and services. इसका मतलब क्या हुआ? Suppose there is a farmer who is producing wheat. Okay, a farmer who is producing wheat, and the value of wheat is say 100 rupees. Okay, the value of wheat is 100 rupees. एंड उसके बाद ये फार्मर जो है वो इस बीट को एक मिल पे बेच दे रहा है, मिल पे. ओके, अब ये मिल वाला क्या करेगा? इस बीट को अपने मिल में कन्वर्ट कर देगा, किसमें? आटा में या मैदा में. ठीक है, तो अब सपोज फ्लोर का जो प्राइस है वो हो गया 150 रुपीज. ओके, फ्लोर का प्राइस कितना हो गया? 150 रुपीज, बिकॉज उसने कुछ अपने तरफ से ऐड किया, उसमें उसका लेबर चार्जेस एंड ऑल उसमें इंक्लूड हो गया, तो 100 से हो गया 150, राइट? अब इस मिल वाले ने क्या किया? फ्लोर को बेच दिया सपोज एक बेकरी को. ओके, बेकरी को बेच दिया, और बेकरी वाले ने क्या किया? इस फ्लोर का केक बना दिया, राइट? अब इस केक का प्राइस इसने रख दिया से 180. ठीक है, 180 रख दिया. अब जब ये केक
बेकरी से कस्टमर के पास जा रहा है, तो कस्टमर को उसके लिए पे करना पड़ रहा है 200 रुपीज, क्योंकि 20 रुपीज उस पर ऐड करके उसने बेचा। ओके, नाउ ट्राई टू फॉलो दिस सिनेरियो। मैंने कहा जीडीपी का डेफिनेशन में कि जीडीपी इज द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic boundary of a nation in a given period of time. So this is the definition of GDP. A given period of time में the amount of final goods and services which are produced. So इस केस में what is the final good? Final good मतलब जो good consumer consume कर ले रहा है. So which is the final Cake. good? Yes, cake is the final good. Very good. And who is consuming the cake? You. Hmm? You. You. Customer. Yes, consumer or customer. So customer is consuming the cake. So what is the amount which he or she is paying for the cake? What is the amount? 180. 200. So the final goods and 202. services 200 ना. केक तो 180 का है ना? बट 180 का केक अच्छा, बेकरी वाले ने बनाया, उसने अपने हाँ, तरफ से ठीक है। ऐड किया 30 रुपीज, ठीक है, अब बेच रहा है वो 200 में। अच्छा, तो द फाइनल अमाउंट व्हिच द कस्टमर इज पेइंग फॉर द केक इज 200 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग इंडिया के जीडीपी में 200 रुपीज ऐड करेंगे, तो इंडिया का जीडीपी कितना हो गया? 200 रुपीज, राइट? सो दिस इज अ मेथड बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट जीडीपी। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone this process? हाँ भैया। Okay. हाँ. So this method is known as expenditure method. Now why expenditure method? Because यहाँ पे we are basically calculating the amount of expenditure of the customer, the amount of money the customer is spending on the cake. Okay, so this is a method which is known as expenditure method. तो expenditure method से हम लोगों ने GDP कैलकुलेट किया। अब इसी तरह से ये एक हो गया फार्मर का एग्जांपल। अब इसी तरह से कंट्री में और भी कई चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे फ्रूट जूस। अब फ्रूट और फ्रूट जूस अगर हो रहा है, सपोज मान लो कि एक फार्मर है, उसने फ्रूट्स का खेती किया, राइट? अब उसने उस फ्रूट्स को सपोज एक फ्रूट जूस वाले को बेच दिया, उसने जूस बनाया और उसको कस्टमर को बेच दिया, राइट? तो सपोज फार्मर ने 100 रुपए का फ्रूट बनाया था और जूस उसने जब जूस वाले को बेचा, तो जूस वाले ने जूस का कीमत रख दिया 150 रुपीज और कस्टमर दे रहा है 160 रुपीज। सपोज ये सिनेरियो है, तो हम लोग जीडीपी में सिर्फ जूस का प्राइस ऐड करेंगे 150 रुपीज, बिकॉज दिस इज द फाइनल गुड। कंज्यूमर इसे कंज्यूम कर रहा है, फ्रूट्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है। नाउ लास्ट डे विनीत आस्क्ड अ क्वेश्चन कि कुछ फ्रूट्स तो होगा जो कस्टमर कंज्यूम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि सारा फ्रूट्स का जूस बन जा रहा है। सो ही वाज राइट, सारा फ्रूट का जूस नहीं बन रहा है, हम लोग बस उसी पोर्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं जो पोर्शन ऑफ फ्रूट से जूस बन जा रहा है। अब कुछ फ्रूट होगा जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो इन दैट केस कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा उसमें, डायरेक्ट फ्रूट का वैल्यू ऐड हो जाएगा जीडीपी में। बट इस केस में जब जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रूट से हम लोग जूस बना रहे हैं, उसमें हम लोग 160 रुपीज ऐड करेंगे लास्ट वाला जीडीपी में, ठीक है? यहाँ पे अगर तुम लोग ऐसे लिखते हो कि भैया आप बोले तो फाइनल गुड्स जो होता है वही आप बोले थे बस ऐड होगा। यस, फाइनल गुड ऐड हो रहा है, तो जूस ही ना कंज्यूम कर रहे हैं, तो जूस ऐड हो रहा है। तो एक तरफ से देखे तो फ्रूट्स अपना तरीका में फिनिश प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट एक तरफ से अगर देखे तो। देखो एक मिनट, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, देखो निखिल तुम्हारा बात समझ, मैं मेरा बात समझने की कोशिश करो। तुम बोल रहे हो फ्रूट एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन फ्रूट वही वाला फाइनल प्रोडक्ट, जैसे देखो एक कंट्री में सपोज 50 पीस ऑरेंज तैयार हो रहा है, राइट? 50 ऑरेंजेस। अब इस 50 ऑरेंज में सपोज 20 ऑरेंज जा रहा है जूस बनने के लिए, राइट? और 30 ऑरेंज जा रहा है डायरेक्ट कस्टमर के पास। तो जब ये जो 30 ऑरेंजेस डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रहा है, तो इसमें हम लोग कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट 30 into 100 कर देंगे, क्योंकि 100 रुपीज का फ्रूट है।
तो ये 3000 रुपीज अच्छा। जीडीपी में जाएगा डायरेक्टली। लेकिन ये 20 वाले में क्या होगा ना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, सिंस इसका जूस बन जा रहा है वर्थ 160 रुपीज, तो इसको 160 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 into 160 3200 रुपीज जीडीपी में डालेंगे। तो जो चीज, जो फ्रूट का जूस बन रहा है और जो फ्रूट डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, दोनों का जीडीपी कैलकुलेशन अलग अलग होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ हाँ भैया। सबको समझ में आई ये बात? हम्म। Okay, so हाँ। this is the way we calculate GDP. It's the final product which is added to GDP. Okay, तो इस केस में देखो ये बेकरी वाले एग्जांपल में तो भैया यस भैया विनीत रिपीट लिखा है। विनीत सिंह रिपीट। अच्छा ओके, विनीत देखो क्या है कि सपोज मैंने ऑरेंज तैयार किया, 50 पीस ऑरेंज तैयार किया। ओके, अब इस 50 ऑरेंज में मैंने 20 ऑरेंज जो है वो जूस वाले को बेच दिया, ठीक है, और 30 ऑरेंज जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो कंज्यूम हो चुका है, जो कस्टमर ने कंज्यूम कर लिया। अब ये जो 30 ऑरेंज है ये डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रहा है, राइट, और ऑरेंज का कीमत कितना है, 100 रुपए। ओके, क्योंकि फार्मर ने 100 रुपए का ऑरेंज बनाया है। तो जब कस्टमर 100 रुपए का 30 ऑरेंज खा रहे हैं तो टोटल वर्थ कितना हुआ, 3000 रुपीज। तो ये 3000 रुपीज इंडियन जीडीपी में जा चुका है, राइट। अब इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये 20 ऑरेंज जो मैंने जूसर को, जूस वाले को बेच दिया, तो वो जूस वाला क्या करेगा, इस ऑरेंज को तो खाएगा नहीं, वो इसका पहले जूस बनाएगा, राइट। तो जब वो जूस बना रहा है तो ही इज एडिंग हिज वैल्यू, वो अपना लेबर कॉस्ट, अपना जो उसका एक्सपेंसेस है, यानी कि जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, उन सबको उसमें इंक्लूड करेगा। तो वो सब इंक्लूड करके जूस का कीमत हो गया 160 कस्टमर के लिए, राइट। तो कस्टमर ने 160 रुपीज का 20 ऑरेंज कंज्यूम किया, यानी कि टोटल उसने कितना कंज्यूम किया, 3200 रुपीज का कंजम्पशन वहां पे हुआ जूस वाले के पास से, राइट। तो ये 3200 रुपीज जीडीपी में जाएगा। तो अगर मैं बोलूं टोटल ऑरेंज का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मैं बोलूंगा 3200 प्लस 3000, यानी कि 6200 रुपीज ऑरेंज का कंजम्पशन है। बात आया समझ में विनीत को? अच्छा अच्छा, अब इधर देखो, समझने की कोशिश करो। भैया अगर ये सारा ऑरेंज, एक और है। अगर ये सारा ऑरेंज कस्टमर डायरेक्ट कंज्यूम करता, राइट, तो कितना का जीडीपी होता हमारा, अगर सारा ऑरेंज कस्टमर डायरेक्ट कंज्यूम करता तो हो जाता 50 into 100, राइट, यानी कि 5000 हमारा जीडीपी होता। लेकिन इस केस में कितना हो रहा है जीडीपी, 6200। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चीजों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालेंगे तो हमारा जीडीपी का वर्थ ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो हम लोग को हमेशा चीजों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालना चाहिए। कंजम्पशन जितना लास्ट में होगा उतना ज्यादा जीडीपी का वैल्यू बढ़ेगा। बिकॉज मैंने ये बताया था कि इकोनॉमी में मनी कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मनी का फ्लो कितना है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। ये वाला तुम लोग पिछले वीडियो में देखोगे, मनी वाला जो मैंने बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस एग्जांपल, बेकरी वाला। सो ये 200 रुपीस का केक द कस्टमर इज बाइंग, सो इट इज हिज एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 200। तो 200 इज द जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो इसी तरह से ये जो कस्टमर है ये सिर्फ केक तो नहीं खाएगा, ये और भी चीजें खाएगा। ये सपोज ये फ्रूट्स खाएगा, ये सपोज राइस और चिकन, कितना सारा चीज है, डिफरेंट चीजें जो खाएगा। अभी देखो, अगर तुम सोचने की कोशिश करो तो वो ये कस्टमर सपोज चिकन भी खा रहा है, अब चिकन तंदूरी भी खा रहा है, चिकन का सपोज रोल भी खा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वो अलग अलग चीज कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जब हम जीडीपी में ऐड करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाले चीज का वैल्यू ऐड करेंगे। अब सपोज चिकन है 100 रुपीज का, और उस चिकन का मैंने रोल बनाया और रोल का दाम हो गया सपोज 500 रुपीज, बहुत सारा रोल था सपोज, तो तुम 100 प्लस 500 600 नहीं ऐड करोगे, तुम सिर्फ 500 ऐड करोगे, राइट। क्योंकि अगर हम लोगों ने दोनों ऐड कर लिया तो वहां पे क्या होता है, ओवर कैलकुलेशन हो जाता है, जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम लोग को सिर्फ फाइनल गुड का कीमत को ऐड करना है। तो इस तरह से हम लोग
जितने भी कंज्यूमर से कंट्री में सबका एक्सपेंडिचर का डेटा अगर हमारे पास आ जाए, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। कौन कितना वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोडक्शन की। तो जैसे देखो इस एग्जांपल में फार्मर का वैल्यू एडेड कितना था, फार्मर ने कितने का प्रोडक्शन किया, टेल मी हाउ मच वैल्यू इज एडेड बाय द फार्मर। 150। नो, व्हाई 150? 100 100। तो 100। तो फार्मर का वैल्यू एडेड था 100। अच्छा, मिल वाले ने कितना वैल्यू ऐड किया? 50 ऐड किया। 50 कितना? 50 गुड। तो मिल वाले का वैल्यू एडेड 50, बिकॉज वो 100 तो उसने 100 का तो उसने खरीदा था फार्मर से और उसने अपने तरफ से हाँ, 50 डाला है। अब बेकरी वाले ने किया 30 और कस्टमर ने कितना किया 20, राइट। तो ये सबका वैल्यू एडेड है। अब अगर तुम सबके वैल्यू एडेड को अगर तुम ऐड कर दो तो देखो टोटल कितना आ रहा है, 200। 200 आ रहा है, राइट। तो जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड भी सेम आएगा 200। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया वैल्यू एडेड मेथड? हम लोगों ने सबका वैल्यू को ऐड किया जो वैल्यू उसने कंट्रीब्यूट किया था, राइट। नाउ लास्ट मेथड इज इनकम मेथड। ओके, नाउ इनकम मेथड एक ऐसा मेथड है जो बहुत कम यूज किया जाता है बिकॉज नो वन इज विलिंग टू डिस्क्लोज हिज और हर इनकम टू द नेशनल सेंसस। कोई भी अपना इनकम डिस्क्लोज नहीं करता इतना इजीली, तो उससे क्या है कि जीडीपी का कैलकुलेशन बहुत गलत होता है, इसलिए इनकम मेथड ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि सबका इनकम कितना हुआ, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेकरी वाले का इनकम कितना है 30 30, राइट। मील वाले का इनकम कितना है 50 और व्हीट वाले का कितना है 100, राइट। और एक्स्ट्रा कस्टमर ने अपने तरफ से कितना दिया 20, तो उस तरफ से अगर हम नीचे से ऐड करें तो वो भी 200 आएगा। सो दैट इज बाय इनकम मेथड वी कैन कैलकुलेट जीडीपी। नाउ इन तीनों मेथड में सबसे वैल्यूएबल मेथड जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे जीडीपी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है, राइट। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमी में कितना सेल्स हुआ और उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर इतना सेल्स हो रहा है यानी कि लोगों ने इतना चीज खरीदा है, यानी कि हमारा कंट्री का जीडीपी उतना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आधा से ज्यादा तो पता ही नहीं चलता होगा फिर इंडिया में। Yes, ऐसा होता है। Now it depends on whether the economy is developed or developing. Now in developed economies ज्यादातर जो transactions है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, तो डेटा जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जैसा है और साउथ एशियन इकोनॉमी, उसमें क्या है कि बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है, राइट। अभी जैसे कि तुमने किसी फुचका वाले के पास फुचका खाया, तो दैट इज आल्सो प्रोडक्शन, वो भी जीडीपी में ऐड होना चाहिए, बट वो होता नहीं है ऐड बिकॉज उसका कोई डेटा नहीं है किसी के पास। सो इंडिया में बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जीडीपी लॉस हो जाता है, तो इसको कहते हैं लीकेज होना इकोनॉमी से, राइट। दिस इज नोन एज लीकेज इन इकोनॉमी। अच्छा, तो जीडीपी बढ़ना क्या मतलब इज गुड फॉर इकोनॉमी ना? ऑफ कोर्स जीडीपी बढ़ना इज गुड फॉर इकोनॉमी, बट तो मतलब हम लोग का जीडीपी बढ़ा ही हुआ है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स का तो ये क्या रिकॉर्ड ही तो नहीं है। नहीं, हमारा जीडीपी नहीं बढ़ा जैसे हुआ अभी अपने कुछ का बोला। विनीत लेट मी क्लियर दिस। हमारा जीडीपी नहीं बढ़ा हुआ है। आवर जीडीपी इज 2.8 ट्रिलियन डॉलर, राइट। बट अगर तुम बट एक्चुअली 2.8 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है, हमारा जीडीपी उससे भी कम है। क्योंकि अगर हम लोग बेसिक नॉलेज अपना लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादा दिखा रहा है, जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो साथ में तो एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले कौन है, लेबर्स। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है, इट मींस दैट देयर शुड बी एम्प्लॉयमेंट आल्सो, बट एम्प्लॉयमेंट डेटा शोज समथिंग डिफरेंट। एम्प्लॉयमेंट डेटा शोज दैट India at this point of time is having the highest number of unemployment in the past 45 years. तो यहाँ पे क्या है कि there is definitely there is a maltreatment with the official data, और बहुत सारे डेटा को छुपाया जाता है आजकल जो सही नहीं है। तो इससे हम लोग को एग्जैक्टली समझना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कंट्री में, राइट।
अब ये ट्रांसपेरेंसी क्यों छुपाया जाता है वो मैं नहीं पता मेरे को, बस यही समझ लो कि ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है जीडीपी का. ओके, नाउ I will discuss which things are added in GDP and which things are excluded from GDP. Okay, this is very important. Which things are added and which things are not added. कुछ चीजों का प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग जीडीपी में ऐड नहीं करते, राइट? फॉर एग्जांपल, सपोज, भैया यस, भैया ये हम लोग इनकम इफेक्ट क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी में कोई तो अपना बताएगा नहीं कि किसका कितना इनकम है, तो इस हिसाब से तो बजट पे भी इफेक्ट पड़ता होगा ना? यस, पड़ता है, नेशनल बजट पे. हाँ पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ता है. ठीक है, अभी इनकम देखो, लोग अपना इनकम क्यों नहीं बताते हैं? इनकम नहीं बताने का रीजन है, लोग अगर इनकम बताएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो टू इवेड टैक्स पीपल डोंट डिस्क्लोज देयर इनकम. लेकिन डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, उनका जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके इनकम का कोई रिसिप्ट नहीं मिलता उनको. लेकिन स्टिल हमारे कंट्री में जो फॉर्मल सेक्टर्स है, जैसे सपोज जो आईटी सेक्टर्स में काम करते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं हाई पोस्ट पे, यानी कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, उनका जो इनकम है वो डेटा गवर्नमेंट के पास है. हमारा पैन अकाउंट सब कुछ लिंक रहता है गवर्नमेंट के साथ, तो वो डेटा हम लोग बहुत इजीली गवर्नमेंट के पास चला जाता है. बट मेजर सेक्टर जो हमारे कंट्री में है वो इनफॉर्मल है, तो उसका डेटा जाना बहुत ही मुश्किल है. अब तुम्हारे इलाके में एक फुचका वाला कितने का फुचका बेच रहा है, वो क्या अपना इनकम टैक्स फाइल करता है? ऑफ कोर्स नहीं करता है, तो उसका इनकम का कोई डेटा नहीं है, राइट? भैया अभी ऐड कैसे होता है जीडीपी फिर? क्या बोल रहे हो? अभी मतलब कौन सा मेथड से जीडीपी ऐड होता है अभी के जीडीपी टाइम हमारे कंट्री में ज्यादातर एक्सपेंडिचर मेथड से फॉलो किया जाता है. ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से. अभी क्या है कि कुछ पोर्शन जैसे देखो कि जो ऑफिशियल सेक्टर है उसको हम लोग इनकम मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं. अब जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं, लेकिन स्टिल हमेशा कुछ ना कुछ 19-20 रहता है हमारे जीडीपी में. करेक्ट कैलकुलेशन जीडीपी का कभी नहीं होता है. ओके, अच्छा. नाउ अभी जो मैं बताने वाला हूँ which things are included in GDP and which things are excluded in GDP, तो एक एक करके बताऊंगा. सपोज यू हैव मैंगो ट्री इन योर हाउस, मतलब तुम्हारे घर के बाहर एक मैंगो ट्री है, तुम्हारा है वो, ठीक है? अब उसमें मैंगो हो रहा है और तुम मैंगो को कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कंजम्पशन जो है वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा, राइट? तुमने प्रोडक्शन किया, उस मैंगो का प्रोडक्शन तुमने किया और तुमने उसे कंज्यूम किया, तो वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो जो मैंगो का प्राइस है या मैंगो का जो वर्थ है वो मार्केट स्ट्रक्चर से होके नहीं आ रहा है. क्योंकि अगर वो मार्केट में जाता तब उसका सप्लाई डिमांड फेस करना पड़ता, तब उसका एक कीमत बनता और तब वो जीडीपी में ऐड होता. लेकिन सिंस तुम अपने घर में बना रहे हो, खा रहे हो, उसका कोई इंक्लूड नहीं हो रहा है, राइट? फार्मर्स लोग जो अपना फार्मिंग करते हैं उसके बाद वो कुछ चीजें अपने लिए रखते हैं और कुछ चीजों को मार्केट में बेचते हैं, तो जो चीज वो अपने लिए रखते हैं वो जीडीपी में ऐड नहीं होता है. जो वो मार्केट में बेचते हैं वही सिर्फ जीडीपी में ऐड होगा. तुम्हारे घर में अगर एक मुर्गी है, मुर्गी अंडा दे रही है, वो अंडा तुम खा रहे हो, वो अंडा को तुम ऑमलेट बना रहे हो, तो फाइनल गुड क्या होगा? ऑमलेट. बट स्टिल कोई भी वैल्यू ऐड उसमें नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारे घर का है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर से नहीं आ रहा है. समझ में आया? So the things produced by your own and consumed by your own is not included in GDP. Okay. Now another example. अगर मैं इनकम मेथड देखूं, राइट, तो अगर तुम बोलोगे कि इनकम का सोर्स तो अलग अलग है, जैसे समझो पेंशन, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको पेंशन मिलता था पहले, तो वो उनका इनकम हुआ. बट पेंशन को हम लोग पेंशन को जीडीपी में ऐड नहीं करते, राइट? Now can you tell me why pension is not added in GDP? ये तो उनका इनकम है, उसी से वो खा रहे हैं. फ्री का है तो बिना काम किए मिल रहा है. क्या बोल रहे हो? बिना काम किए मिल रहा है. यस, वेरी गुड. काम किए मिल रहा है. यस, वेरी गुड. पेंशन ऐड इसलिए नहीं होता है क्योंकि पेंशन का जो पैसा है उसके बदले में वो ऑफिशियल्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं. एंड द कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट अगर बनेगा तो उस प्रोडक्ट का वर्थ ऐड होगा, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ बन नहीं रहा है बदले में, तो इसीलिए वो पेंशन का कीमत हम लोग जीडीपी में ऐड नहीं करते. ओके, अभी इससे कुछ क्वेश्चंस. अच्छा, ये पेंशन मिलता क्यों है? पेंशन मिलता है सिक्योरिटी के लिए. गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम चलाती है पेंशन देके. ऐसे हमारे कंट्री में बहुत सारा पेंशन स्कीम है. वृद्धा पेंशन स्कीम, यानी कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है, जो विधवा महिला होती है उसको पेंशन मिलता है. तो ये पेंशन का, ये सब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है. कंट्री में सब लोग के पास मिनिमम पैसा रहे खाने पीने का, गवर्नमेंट उसको इंश्योर करती है, राइट? अब जैसे मिड डे मील,
मिड डे मील का जो जाता है बच्चे लोगों के लिए, उसके लिए क्या कुछ प्रोडक्शन होता है? बदले में नहीं होता है, लेकिन स्टिल उसका एक मेजर सेक्टर गवर्नमेंट, मेजर पोर्शन गवर्नमेंट अपने बजट में रखती है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जीडीपी में उसको ऐड नहीं कर सकते, राइट? तो कॉन्सेप्ट अगर जीडीपी का देखें तो इट्स द प्रोडक्ट और द प्रोडक्शन, लेकिन अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसको ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? भैया अभी जो मोदी दे रहा है राशन कुछ नवंबर तक फ्री देगा, हाँ, वो क्या जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा वो तो। लेकिन देखो उसको अगर मैं देखूं कि सपोज फार्मर ने प्रोड्यूस किया, राइट? अब फार्मर ने प्रोड्यूस किया और गवर्नमेंट ने खरीदा, तो उस जगह पे वो ऐड हो सकता है, लेकिन कस्टमर के लिए वो ऐड नहीं होगा। जैसे कि गवर्नमेंट जब फार्मर से खरीद रही है राशन, तो फार्मर को पैसा दे रही है, तो वो जो स्ट्रीम है, वो जो चैनल है, उसके थ्रू जीडीपी में ऐड हो सकता है। लेकिन सिंस कस्टमर आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट, तो वो वाले पोर्शन पे ऐड नहीं होगा। मतलब जीडीपी बस वहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे ही गवर्नमेंट ने लिया, जीडीपी वहीं पे खत्म, उसके बाद वाला कोई चैनल नहीं बनेगा। समझ में आया बात? हाँ हाँ। ओके, अच्छा, और क्या चीजें हैं जो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो सकती? अब जैसे तुमने भिखारी को पैसा दिया, तो भिखारी के लिए तो वो पैसा मतलब कि क्या नाम है, इनकम हुआ, तो वो इनकम मेथड से ऐड करेंगे क्या? नहीं भैया। नहीं करेंगे। लेकिन अब समझो वो भिखारी ने उस पैसे का एक पावरोटी खरीदा बाजार जाके, तो वो जो पावरोटी का जो कंजम्पशन है उसको ऐड करेंगे जीडीपी में? हाँ करेंगे? हाँ हाँ। नहीं करेंगे, उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम में चले जाएंगे हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से ऐड हो रहा है, लेकिन इनकम मेथड से ऐड नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन अभी जो हम लोगों ने फार्मर का एग्जांपल दिखाया, उसमें हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, सबका वैल्यू सेम आना चाहिए। लेकिन इस बेगर वाले एग्जांपल में इनकम मेथड से वो 10 रुपया जो मैंने भीख दिया उसको, वो ऐड नहीं होगा जीडीपी में, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से उसको करना अच्छा पड़ेगा ऐड। भैया, तो जब इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, तो बेटर नॉट टू ऐड दैट इन जीडीपी। ये ऑफिशियल डेटा इस तरह से काम करती है। बात आया समझ में? अच्छा भैया, सपोज हम एक गरीब को पैसा दिए बहुत सारा, 10,000 रुपए दिए, वो नाइकी के शोरूम में जाके जूता खरीदा नाइकी का, तो वो ऐड नहीं होगा? नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट ऐड नहीं करती है जीडीपी में, ठीक है? तो क्योंकि अब एक गरीब जाके खरीदेगा तो वो तो ऑटोमेटिक एंट्री होगा, वो तो ऑटोमेटिक चला जाएगा वेबसाइट से। हाँ, तो ओवर कैलकुलेशन हो जाएगा जीडीपी का। इसलिए तो बोलते हैं कि जीडीपी करेक्ट मेजर नहीं देता है, ओवर कैलकुलेशन हो जाएगा जीडीपी का। समझ में आया बात? तो लेकिन क्योंकि उस पैसे का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो मैंने उसको दिया, तो ऐड नहीं हो सकता, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ अगर भैया। डोनेशन दे रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, अभी एक और एग्जांपल समझो, तुमने सेकंड हैंड कुछ खरीदा। सपोज यू बॉट अ सेकंड हैंड मोबाइल फोन, तो क्या उसका इंक्लूड होगा जीडीपी में? नहीं। हाँ। क्यों नहीं होगा? वो दुकान से नहीं, तो वो हैंड टू हैंड ले रहे हैं शायद, इसीलिए नहीं होगा। नहीं, दुकान से ही लेते हैं, चलो दुकान से ही ले रहे हैं सेकंड हैंड। फ्लिपकार्ट वाले लेते हैं ना सेकंड हैंड, एक्सचेंज ऑफर में एक चीज लेते हैं, उसका पैसा कमा देते हैं नए प्रोडक्ट पे, तो वो जीडीपी में ऐड होगा या नहीं होगा? हाँ, तब होगा। नहीं होगा, स्टिल नहीं होगा। क्योंकि कैन एनीवन टेल मी क्यों नहीं होगा? आप और एक बार बोलिए ना ये वाला। क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार हो चुका है। वो पहले एक बार ऐड हो चुका है। यस, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेकंड हैंड कोई चीज अगर मैं खरीदता हूँ, तो वो जीडीपी में ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो चीज जब पहली बार बना था और पहली बार जिसने खरीदा था, उस समय ही वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है जीडीपी में। तो दोबारा सेकंड हैंड में उसको अगर ऐड करेंगे तो ओवर कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए वो ऐड नहीं होगा। इज इट क्लियर? मतलब पूरा सिस्टम होल है। हाँ भैया। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पे जीडीपी ऐड होता है या नहीं होता है। ओके, अच्छा, नाउ जैसे कि मैंने कहा था पिछले क्लास में कि जीडीपी हम लोग का नेशनल इनकम नहीं होता है, राइट? जीडीपी इज नॉट आवर नेशनल इनकम। आवर नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ आई विल कम टू दिस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बट बिफोर दैट, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि
जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली तुम लोग को जीडीपी का कंपोनेंट्स भी पढ़ना होगा। तो मैं पहले जीडीपी का कंपोनेंट्स बताऊंगा दूसरे वीडियो में। ओके, सो आई एम सेंडिंग अ न्यू लिंक।